registration procedure of partnership firm? What are the various benefits? मैंने consequences करवाया. Tell me about it. What is the registration procedure of partnership firm? Pratyay, yes. Yes, ma'am. मैम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर पार्टनरशिप डीड में मैम पहला हो जाएगा कि मैम एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर मैम, जिसमें मैम उसमें मैम हो जाता है जैसे नेम ऑफ द फॉर्म उसमें आता है मैम, द प्रिंसिपल प्लेस होता है मैम फॉर्म का जो होता है कहाँ पे है। तीसरा हो जाएगा नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फॉर्म कैरीज ऑन बिजनेस। और जो ये सब मैम एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर में ये सब आते हैं मैम। और मैम जो भी परमानेंट मतलब जो भी पार्टनर्स है उसका परमानेंट एड्रेस आ जाएगा मैम इसी में एप्लीकेशन में ही। और मैम ड्यूरेशन होगा कितना से दिन पार्टनरशिप ड्यूरेशन, मतलब कब पार्टनरशिप शुरू हुआ था कितना दिन तक रहेगा उसका ड्यूरेशन उसमें टैग किया जाएगा। और दूसरा स्टेप होता है मैम सिलेक्शन ऑफ द नेम ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद मैम तीसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये सब था मैम प्रोसीड्यूर प्रोसीजर। हाँ मैम हिंदी में। ओके गुड। नेक्स्ट अनीशा बताइए बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, these all were steps. Registration procedure. Yes, ma'am. Registration procedure, certificate for registration. Ma'am, he said that all the points. May I repeat that again? You have to repeat. Yes, ma'am. First one is application for registration. We have to apply for the registration. Then selection of the name of the firm. Then we will get the certificate from registrar. Then we can open. It's the registration procedure. Okay. What are the various advantages of registration of the firm? Who is going to tell me about it? Raise your hand. पहले सब लोग hand down. About what are the various advantages of registering the partnership firm? What are the benefits? Raise your hand. Yes, Ritik. मैम ये नहीं लिखवाई थी आप, लास्ट में लिखवाने वाली थी ना। What are the importance of partnership? Did yes, Monica, roll number 4. Tell me, what are the various advantages of partnership deed? Ma'am, I want to say various advantages of registration of the partnership and responsibility of partner. And it avoid dispute between the partners. And ma'am, partnership deed also define remuneration or salary of the partners. Okay, okay, good. Yes, Monica, you want to say partnership firm? We already completed that. Today we are going to complete that. What are the various consequences the partnership firm have to face if that is not registered? अगर registration नहीं होता है तो in that case कौन-कौन सी ऐसी problems, consequences जो हैं एक पार्टनरशिप फर्म को फेस करना पड़ सकता है, ठीक है? और कौन-कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिसपे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो या ना हो। तो ये दो जो है टॉपिक वो हम आज कंप्लीट करेंगे। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइप के वो कंप्लीट करेंगे। एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ पार्टनर्स, वी विल कंप्लीट ऑल दीज टॉपिक। यस, then start writing about that what are the various consequences the company have to face if that is your partnership firm have to face if it is not registered. Registration of partnership firm. First point, it cannot enforce its claims. The first point it cannot enforce its claim. It cannot enforce its claims. The first consequences, it cannot enforce its claims. It cannot enforce its claims against the third party, against the third party, against the third party in a court of law, in a court of law. It cannot enforce its claims against the third party, against the third party in a court of law, in a court of law. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर आपका फर्म जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है और ऐसे केस में थर्ड पार्टी में आपके कोई भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो उन पर किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं कर सकते हो। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर क्रेडिटर्स ने आपके लिए क्रिएट किया, कुछ भी आपका लॉस हुआ उनकी वजह से, पर फिर भी आप कोई क्लेम नहीं कर पाओगे। किसके लिए? किसके अगेंस्ट? थर्ड पार्टी के अगेंस्ट। थर्ड पार्टी आपका कौन होगा? जो पार्टनर्स के अलावा जो आउटसाइडर्स हैं, जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए हैं, ठीक है? वो क्रेडिटर्स हो सकते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स हो सकते हैं, वो सारे के अगेंस्ट आप कोई भी क्लेम फाइल नहीं कर सकते हो कोर्ट में अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। तो
फर्स्ट ये एक कंसिक्वेंस हुआ, ठीक है। फर्स्ट इट कैन नॉट, कोई भी क्लेम नहीं कर सकते थर्ड पार्टी के लिए। क्लेम अगर कोई कंपनसेशन, पैसा, कोई भी तरीके का, जैसे मान लीजिए कि आपने 5 लाख का कंपनसेशन मांगना है क्रेडिटर से, उसकी वजह से आपको कोई लॉस हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई धोखाधड़ी किया उसने, बट यू कैन नॉट क्लेम दैट इफ योर पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। पहला हो गया, फर्स्ट कंसिक्वेंसेस ये हो गया। सेकेंड कंसिक्वेंस क्या होगा, लिखिए, इट कैन नॉट फाइल एक मिनट में आप it cannot file a legal suit, SUIT, legal suit against any of its partners. It cannot file a legal suit against any of its partners. What does it mean? कि अगर कोई भी प्रॉब्लम पार्टनर्स के बीच में होता है, ठीक है, तो कोई भी लीगल क्लेम, लीगल केस नहीं कर सकता एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे, अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो। मींस इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट अराइज्ड, ठीक है, तो आप ऐसे केस में कोई भी लीगल सूट, कोई भी तरीके का केस आप अपने पार्टनर्स पे नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टनर्स पे, एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स, पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर पे क्या नहीं कर पाएगा, लीगल केस। क्लियर हो गया? इट कैन नॉट फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म, partners of an unregistered firm cannot file any suit, SUIT, any suit to enforce a right against the firm. Enforce a right against the firm. Partners of an unregistered firm cannot file any suit to enforce a right against the firm. राइट अगेंस्ट द फर्म, यानी कि जो पार्टनर्स होंगे अनरजिस्टर्ड फर्म के, वो किसी भी तरीके का केस फर्म के ऊपर भी नहीं कर सकते। ऐसे भी लीगल एंटिटी वाला केस है नहीं, आप कोई भी चीज इन्फोर्स नहीं कर सकते अपने एंटिटी में, फर्म में, आप उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते फर्म के अगेंस्ट, ठीक है। कोई भी आप केस नहीं बना सकते अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, ठीक है। कोई भी राइट या कुछ भी चीज आप इन्फोर्स नहीं कर सकते फर्म पे अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है फर्म तो। जैसे आरटीआई एक्ट है या कुछ गवर्नमेंट के एक्ट्स है, उसको जल्दी आप इन्फोर्स नहीं कर पाओगे, रजिस्टर्ड फर्म नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, अब पार्टनर्स, खैर ये पॉइंट तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया, इट कैन नॉट फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट एनी ऑफ इट्स पार्टनर्स, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब एक और चीज इसमें होगा कि कोई पार्टनर भी दूसरे पार्टनर पे केस नहीं कर सकता, याद रखिएगा। फर्म भी केस तो कर नहीं सकता, पार्टनर्स भी एक दूसरे पे केस नहीं कर सकता, साथ साथ पे थर्ड पार्टी पे आप कोई क्लेम नहीं कर सकते मिलकर के। फर्म जो है उस पे आप कोई राइट इन्फोर्स नहीं कर सकते, कोई भी तरीके की चेंजेस, मॉडिफिकेशन, लीगल सूट फर्म पे आप कुछ नहीं कर सकते। एक और चीज लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए। इसको लिखने से पहले ये पॉइंट जो है दैट इज ऑलरेडी गिवन इन योर बुक में आपका गिवन है, इसको मैं एक बार समझा देती हूँ कि ये होता क्या है, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। पहला तो हो गया, कोई थर्ड पार्टी पे केस नहीं, कोई पार्टनर पे केस नहीं, पार्टनर कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई फाइल एक दूसरे के अगेंस्ट कोई केस नहीं बना सकता। पांचवा जो है, इट कैन नॉट क्लेम, ध्यान से सुनिएगा, इट कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट फॉर एनी सम एक्सीडिंग ₹100। सपोज, मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी क्लेम नहीं कर सकता जो ₹100 से ऊपर है, मतलब ₹100 से नीचे का जो भी क्लेम होगा वो कर लेगा, ₹100 से ऊपर का क्लेम नहीं करेगा, बहुत कम अमाउंट है ₹100, ठीक है। इट कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट फॉर एनी सम एक्सीडिंग ₹100, ₹100 से ऊपर का क्लेम कर ही नहीं सकता, ₹100 से अंदर का कर सकता है लेकिन 100 से ऊपर का नहीं कर सकता। इसमें ध्यान दीजिएगा। एक मान लीजिए कि अनरजिस्टर्ड फर्म है, ये देखिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मान लीजिए एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, ठीक है, एक अनरजिस्टर्ड फर्म है। अब अनरजिस्टर्ड फर्म जो है उसको किसी को, मतलब उसने ओ किया है, मतलब कितना
ओ किया है मतलब उसने किसी से लिया है 1200 रुपए, ठीक है, ठीक है। अब इसने किससे लिया है, इसने एक्स से लिया है मान लो, मतलब अनरजिस्टर्ड फर्म ने एक्स से 1200 रुपए उधार लिए, ठीक है। अब एक्स, एक मिनट रुकिएगा। अब मान लीजिए कि अनरजिस्टर्ड जो फर्म है वो उसने 1200 रुपए एक्स को दिया है, सॉरी इट्स ओज टू द एक्स, 1200 रुपए एक्स को दिया है। अब एक्स जो है वो 1000 रुपए इसको देगा, मतलब 1200 रुपए दिया और उसने दिया उसको फर्म को 1000 रुपए, मतलब 200 रुपए कम दिए। अब फर्म जो है वो कैन नॉट इनफोर्स एन एडजस्टमेंट ऑफ 1000 इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कि अगर आपका इसका डिफरेंस कितना हुआ, 200 रुपया हो गया, अगर 200 रुपया इस तरीके का डिफरेंस आएगा, मतलब कि जहां पर 100 रुपए से ज्यादा एक्सीड करेगा वहां पर फर्म कोई क्लेम कर ही नहीं सकता। ध्यान से, एक्स को अनरजिस्टर्ड फर्म ने 1200 रुपए दिया, एक्स ने सिर्फ 1000 रुपए फर्म को वापस किया, 200 रुपए वापस किए ही नहीं। अब 100 रुपए से 200 रुपए तो ज्यादा है ना, तो आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी 100 रुपए से कम होगा तो यू कैन क्लेम। यानी कि अगर आपका 1200 रुपए था, ठीक है, 1250 रुपए होता और ये 1200 रुपए देता, तो 50 रुपए के लिए यू कैन क्लेम, जो 100 रुपीज से कम है उसको आप क्लेम कर सकते हो, 100 रुपीज से ज्यादा का आप क्लेम नहीं कर सकते। I know it is a very less amount, but that is the fact basically. If your firm is not registered, you have to do this only. That अगर मान लीजिए कि अनरजिस्टर्ड फर्म है, उसने किसी को 1200 रुपए दिया और उसने सिर्फ 1000 रुपए फर्म को दिया, अब फर्म जो है वो 200 रुपए निकलवाने के लिए he cannot claim because that amount is more than 100. So you can only claim adjustment, ठीक है, you cannot claim the adjustment which is exceeding 100 rupees. You can only claim the amount which is less than 100 rupees. यानी 100 रुपए से कम अमाउंट को लेने के लिए you can claim, but 100 रुपए से ऊपर अगर आपका अनरजिस्टर्ड फर्म है तो you cannot claim. समझ में आया ये फैक्ट? क्लियर हुआ सबको ये फैक्ट? What is the fact? ये सुनने Yes. थोड़ा अटपटा लगता है, Yes, ma'am. कैसे क्यों है, but that is the fact that if your amount is less than 100 rupees, you can claim in court, but the less than अगर exceeding 100 rupees you cannot claim, ठीक है, you cannot claim. समझ में आई बात? तो यही आपका ये इसका जो लास्ट वाला जो यही पॉइंट था कंसिक्वेंसेस, कि आप कोई थर्ड पार्टी पे क्लेम नहीं कर सकते, आप एक दूसरे पार्टनर्स पे कोई क्लेम नहीं कर सकते, आप कोई राइट इनफोर्स नहीं कर सकते अपने फर्म के लिए, आप जो है मतलब फर्म जो है पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता, ऐसे भी लीगल एंटिटी वाला केस है नहीं। एंड द लास्ट वन इज दैट द क्लेम विल नॉट एक्सीड द 100 rupees if there is any kind of cases, if you will basically give the amount to the any other person or any other company, you cannot claim above the 100 rupees, मतलब 100 रुपए से अंदर को आप क्लेम करोगे, 100 रुपए से ऊपर को आप क्लेम नहीं करोगे। क्लियर हो गया पॉइंट एवरीवन? नेक्स्ट, मतलब और कौन-कौन से बेसिकली रजिस्टर, कौन-कौन से ऐसे प्रोसीजर हैं, मतलब कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं जो रजिस्ट्रेशन होने नहीं होने से उसको फर्क नहीं पड़ेगा, जो कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं नॉन रजिस्ट्रेशन के, वो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। और जो कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं मतलब जिसपे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, मतलब कोई कॉन्सिक्वेंसेस होगा ही नहीं, रजिस्टर्ड हो फॉर्म या रजिस्टर्ड फॉर्म ना, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले, वो सारी कौन-कौन सी चीजें होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर है कि पहला कि एन आउटसाइडर और अ थर्ड पार्टी कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट एन अनरजिस्टर्ड फर्म एज वेल एज अगेंस्ट इट्स पार्टनर्स, ठीक है। यानी जो थर्ड पार्टी होगा, यानी कि कोई भी जो आउटसाइडर होगा, वो आप पर इजीली केस कर सकता है क्योंकि आप एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, और आपके पार्टनर्स के ऊपर भी केस कर सकता है, यानी कि थर्ड पार्टी को पूरा राइट है आपके ऊपर केस कर सकते हैं, बट आपके ऊपर राइट नहीं है कि आप केस करें थर्ड पार्टी पे। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये वाला पहला पॉइंट होगा कि एन आउटसाइडर और थर्ड पार्टी, तो जो आउटसाइडर होगा, थर्ड पार्टी होगा, वो आपके फर्म के अगेंस्ट या फिर आपके पार्टनर्स के अगेंस्ट इजीली केस कर सकते हैं, फाइल सूट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला, फर्स्ट ये हो गया, मतलब आप रजिस्टर्ड हो ना हो, थर्ड पार्टी कैन इजीली सू यू, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्या पॉइंट है, an unregistered firm and its partner can file lawsuits if the firm has no place of business in India.
यानी कि अगर आपका जो बेसिकली फर्म है वो इंडिया में नहीं चल रहा है, इंडिया से बाहर चल रहा है, ठीक है, एन अनरजिस्टर्ड फर्म, ध्यान से सुनिएगा, एंड इट्स पार्टनर कैन फाइल लॉ सूट्स इफ द फर्म हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। यानी फर्म जो है वो बिजनेस इंडिया में नहीं कर रहा है, ठीक है, बिजनेस इंडिया में नहीं कर रहा है, बट कोई कंसिक्वेंसेस हुआ है, तो ऐसे केस में आपका अनरजिस्टर्ड फर्म और पार्टनर्स जो है वो फाइल केस कर सकता है, ठीक है। यानी कि उसका प्लेस इंडिया में नहीं है, बिजनेस इंडिया में नहीं चल रहा है, बट इफ दे विल फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी हुआ, तो दे कैन इजीली केस अ फाइल। लेकिन यहाँ पर ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि वो जो बिजनेस का प्लेस इंडिया में नहीं होना चाहिए, द प्लेस जो है इंडिया में, मतलब फर्म का प्लेस इंडिया में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ द फर्म हैज नो प्लेस, कोई प्लेस नहीं है बिजनेस करने के लिए इंडिया में, तो ऐसे केस में जो आपका अनरजिस्टर्ड फर्म और उसके पार्टनर्स किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं, इंडियन पीपल पे भी केस कर सकते हैं, किसी पे भी केस कर सकते हैं, लेकिन उनका जो प्लेस, बिजनेस प्लेस इंडिया में नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है, एक और क्या इफेक्ट है जो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कोई कंसिक्वेंसेस फेस नहीं करना पड़ेगा। An unregistered firm can file a suit or claim set off in the court where the claim does not exceed 100। जो मैंने आपको पहले ही पॉइंट में क्लियर कर दिया कि 100 रुपए से कम के क्लेम के लिए वो फाइल कर सकते हैं, केस सूट, वो केस फाइल कर सकते हैं, बट वो पैसा जो है वो 100 रुपीज से वो क्लेम ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, यानी द अमाउंट, द क्लेम अमाउंट विल नॉट एक्सीड फ्रॉम और अबव 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए से ऊपर बढ़ना नहीं चाहिए। तो ऐसे केस में आपका अनरजिस्टर्ड जो फर्म होगा वो फाइल सूट कर सकता है, ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में। ये हो गए 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि आपका आउटसाइडर और थर्ड पार्टी आपके ऊपर, फर्म के ऊपर केस कर सकता है। दूसरा क्या होगा कि जो आपका अनरजिस्टर्ड फर्म है और उसके जो पार्टनर्स है, अनरजिस्टर्ड फर्म और उसके जो पार्टनर्स है वो भी फाइल केस कर सकते हैं, लेकिन उनका जो बिजनेस प्लेस होना चाहिए वो इंडिया में नहीं होना चाहिए, दूसरा कंडीशन। तीसरा क्या होगा कि अनरजिस्टर्ड फर्म जो होगा, जो अनरजिस्टर्ड फर्म होगा वो केस या क्लेम तभी कर सकता है जब वो अमाउंट, क्लेम अमाउंट इज नॉट एक्सीड ₹100, यानी 100 रुपए से ऊपर नहीं पड़ेगा तो दे कैन क्लेम, ठीक है। अब चौथा क्या होगा कंडीशन, एनीवन हैव टू आस्क समथिंग? आई गेस अनीशा यू रेज्ड योर हैंड। आगे लिखते हैं, आगे लिखिए, समझिए बस ये कुछ पॉइंट्स जो है दैट इज ऑलरेडी। Partners of an unregistered firm can file suit for resolution of firm for obtaining accounts of a dissolved firm and releasing the property of dissolved firm। अगर आपका फर्म जो है that is unregistered, वो registered नहीं है, तो ऐसे केस में अगर आप चाहें तो आप अपने फर्म को डिसॉल्व करने के लिए फाइल सूट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहें कि आप अपना फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, वाइंड अप करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में आप इजीली जो है वो फाइल सूट कर सकते हैं कोर्ट में कि आई जस्ट वांट टू डिसॉल्व माय पार्टनरशिप फर्म। तो उस केस में डिसॉल्यूशन के केस पे आपका जो आप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी इन द केस ऑफ डिसॉल्यूशन, यानी कि अगर आप अपने पार्टनरशिप फर्म को बंद करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, तो ऐसे केस पे आप रजिस्टर्ड रहे या अनरजिस्टर्ड रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इजीली फाइल कर सकते हैं केस, अपने डिसॉल्यूशन के बारे में आप आराम से कोर्ट में बता सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे अपना जो है फर्म को डिसॉल्व करना है, वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। Dissolution procedure also that will be followed in the unregistered firm as well। यानी कि डिसॉल्यूशन जो है वो जैसे रजिस्टर्ड फर्म का होता है वैसे ही अनरजिस्टर्ड फर्म का भी होगा, ठीक है। और उसमें भी सेम चीजें होंगी कि भाई आपका जो फर्म में वो सारी प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है, जैसे आपके प्रॉपर्टी, मान लीजिए कि आपके पूरे ऑफिस है, आपके वहां पे फर्नीचर्स है, एसी एंड ऑल एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं उसको आप नॉर्मली जैसे रजिस्टर्ड फर्म में सेल करते हो रिलीज करने के लिए कुछ अमाउंट्स को, वैसे इसमें भी आप उसको प्रॉपर्ली सेल करोगे, अपने अमाउंट को रिलीज करोगे। तो मतलब डिसॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड ना हो। क्लियर हो गया कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट बिकॉज इफ द फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड। और आगे पॉइंट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, the official assignee or receiver can file suit to release the property of an insolvent partner of an unregistered firm।
यानी कि एक ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर जो होगा, ठीक है, वो आपके मतलब प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए इंसॉल्वेंट पार्टनर का या पार्टनरशिप फर्म का इजीली असाइन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि कोई ऑफिशियल असाइनी आपके ऊपर केस कर सकता है आराम से, ठीक है, फाइल सूट कर सकता है कि भाई मुझे इनके प्रॉपर्टी को डिसॉल्व करवाना है। कई बार तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है, वो आपके प्रॉपर्टी को क्या करेगा, फाइल सूट करेगा, आपके प्रॉपर्टी को क्या करेगा, वो सेल करेगा, और उसके बाद फिर इंसॉल्वेंट जो पार्टनर, यानी कि जो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल बिल्कुल कर्जे में डूबे हुए जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, अनरजिस्टर्ड फर्म है उनका, और अगर उनका कंपनी डिसॉल्व हो चुका, खत्म हो चुका, कोई भी रीजन से, मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है या दिवालिया दिवालिया निकल गया, सुना है वर्ड? Yes, ma'am. बोलते हैं ना यस दिवालिया। मैम, इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर कोई आपका इंसॉल्वेंट पार्टनर है जो कर्जे में डूबा हुआ है अनरजिस्टर्ड फर्म का, तो उसकी प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए ऑफिशियल असाइनी या कोई रिसीवर जो है वो क्या करेगा, बेसिकली आपके लिए फाइल केस करेगा और आपकी प्रॉपर्टी से अपना जो भी अमाउंट होगा उसको रिलीज करके पूरा फुलफिल कर लेगा। तो यानी कि जो ऑफिशियल असाइनी है वो भी हो सकता है, रिसीवर जो है वो फाइल सूट कर सकता है। अनरजिस्टर्ड जो फर्म है कैन फाइल अ मैम सूट फोर्थ अगेंस्ट पॉइंट क्या था मैम? फोर्थ पॉइंट कौन बोल रहा है, मैं बता रही हूँ, एक एक करके फिर एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और कुछ चीजें हैं जिसपे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। अब यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बुक से बाहर के लिखवा रही हूँ, थोड़े लैंग्वेज डिफरेंट है, अब लिखना शुरू कीजिए एक एक करके सारे पॉइंट्स को। नॉन रजिस्टर्ड, इसमें लिखिए राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, राइट्स नॉट अफेक्टेड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कौन से राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे, तो पहला लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट जो लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, the power of an official assignee, the power of an official assignee or receiver to release the property of an insolvent partner. The power of an official assignee or receiver to release the property of an insolvent partner, यानी कि कोई ऑफिशियल असाइनी वगैरह साइन किया जा सकता है, या तो वो कोर्ट के द्वारा होगा, कोर्ट के द्वारा ही ज्यादातर चांसेस है, कोर्ट के द्वारा ही होगा वो, ठीक है, उनको असाइन कर दिया जाएगा ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो प्रॉपर्टी इंसॉल्वेंट जो इंसॉल्वेंट बेसिकली पार्टनर है या फिर वो जो पार्टनरशिप फॉर्म पूरा डूब चुका है उससे प्रॉपर्टी के थ्रू पैसे वो निकलवा सके, ठीक है। तो कोर्ट जो है ना बेसिकली एक ऑफिशियल असाइनी वगैरह हायर करता है ऐसे केस में। तो ये भी चीज हो सकता है, अगर आपका फॉर्म रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, आपको ऑफिशियल असाइनी जरूर मिलेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यस, रोल नंबर 49, the power of an official assignee, the power of an official assignee, ASSIGNEE assignee or receiver to release the property of an insolvent partner, release the property of insolvent partner, ठीक है, release the property of insolvent partner, ठीक है, of an unregistered firm, यानी यहाँ पर दोनों चीजें हो रही है। प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं, उनके पर्सनल प्रॉपर्टी भी रिलीज करा सकते हैं अगर उस पार्टनर के ऊपर बहुत बड़ा डेप्ट है, बहुत ज्यादा डेप्ट है। तो कोई ऑफिशियल असाइनी आएगा कोर्ट से और आपके बाहर एक पोस्टर, एक नोटिस चिपका के चला जाएगा, और उसके बाद उसमें कुछ पर्टिकुलर डेट होगा और उस डेट को आकर के वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो भी होगी वो बिड करके या सेल करके या अमाउंट को रिलीज कराने के लिए वो ये सारे एक्टिविटीज को करेगा। अगर आपका फॉर्म रजिस्टर्ड है तो भी ये चीज होगा, अनरजिस्टर्ड है तो भी ये चीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, द राइट ऑफ द फर्म और इट्स पार्टनर, द राइट्स ऑफ द फर्म or its partner, the right of the firm or its partners
that they can file lawsuits, SUITs, file lawsuits, if the firm has no place of business in India. If the firm has no place of business in India, वही वाला सेम पॉइंट, अगर आपका फर्म कोई इंडिया में बिजनेस नहीं है तो आप आराम से यहाँ पर केस कर सकते हो, पार्टनर्स और अनरजिस्टर्ड फर्म दोनों केस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैम, ऑफ बिजनेस की बात क्या बोली? any suit or set off in which the claim does not exceed rupees 100. Any suit or set off in which the claim does not exceed rupees 100. Any suit or set off in which the claim does not exceed rupees 100. ठीक है, 100 रुपए से ऊपर का क्लेम अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप इजीली क्लेम कर सकते हो, यानी कि फाइल केस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, the right of the third party sue the unregistered firm, SUE, sue यानी केस कर देना। The right of the third party to sue the unregistered firm or its partners, यानी थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस आराम से कर सकता है, रजिस्टर्ड हो या ना, ठीक है। तो ये आपके वो सारे इफेक्ट्स थे जो किसी भी तरीके से मतलब कोई कंसिक्वेंसेस नहीं होगा अगर आप रजिस्टर्ड हो या ना हो, ये सारी चीजें आराम से हो सकती हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो आपको ऑब्वियसली बेनिफिट्स मिलेगा, यू कैन सू द अदर पार्टीज, आप कंपनसेशन के लिए आप कर सकते हो, बेसिकली क्वेश्चन रेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप अनरजिस्टर्ड हो उस केस में आपको बहुत सारी कंसिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये तो वो थे। अब एडवांटेजेस क्या है रजिस्ट्रेशन के, ये तो कंसिक्वेंसेस थे, यानी क्या इफेक्ट पड़ेगा नॉन रजिस्ट्रेशन का, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिसपे इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड हो या फर्म रजिस्टर्ड ना हो। तो ये वो दो था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। What are the various advantages? क्या क्या एडवांटेजेस होगा अगर आपका फर्म जो है वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है तो क्या हो सकता है, क्या क्या फायदे होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो ऐसे केस में आप या फर्म के पार्टनर्स किसी भी आउटसाइडर के ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो यू कैन इजीली फाइल अ केस अगेंस्ट द आउटसाइडर। तो दिस इज द वन बेनिफिट, ये पहला बेनिफिट है कि आप आउटसाइडर के ऊपर केस कर सकते हो इजीली। लेकिन अगर आप नॉन रजिस्टर्ड हो तो आप थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पार्टी आपके ऊपर केस कर देगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट, अगर फर्म जो है रजिस्टर्ड है तो एक दूसरे के अगेंस्ट भी पार्टनर्स केस कर सकते हैं इन द सिचुएशन इफ देयर इज एनी कंफ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स अराइज। यानी कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर लीगल केस कर सकते हैं इन द केस, अगर मतलब कोई सिचुएशन ऐसा बना जहां पर केस करने की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे को पे केस कर सकते हो। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो पार्टनर्स एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, ठीक है। एक क्लियर हो गया सबको पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या हो सकता है अगर बेसिकली अगर आप चाहें तो मतलब इजीली जो है, अगर रिटायरिंग पार्टनर जो है, मतलब जो पार्टनर जो है अगर वो रिटायर होना चाहते हैं तो वो अपनी लाइबिलिटी से नहीं भाग सकता अगर आपने रजिस्ट्रार के पास इंफॉर्मेशन दे रखा है, यानी आपका रजिस्टर्ड फर्म है तो रिटायर्ड पार्टनर्स जो है वो भी अपनी सारी लाइबिलिटी को फुलफिल करेंगे। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड फर्म नहीं है तो रिटायरमेंट के बाद हो सकता है वो अपनी लाइबिलिटी और ये सारी अपनी जो भी जिम्मेदारी उसको छोड़ के पार्टनर चला जाए। तो क्योंकि आप
केस तो कर ही नहीं सकते। तो ये सारी कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। इसमें याद रखिएगा कि आप थर्ड पार्टी के ऊपर लीगल केस कर सकते हो, पार्टनर एक दूसरे के ऊपर लीगल केस कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी राइट्स होगा कोर्ट ऑफ लॉ, जो भी राइट्स लॉ के अकॉर्डिंग होगा वो आप अपनी फर्म में इन्फोर्स कर सकते हो, ठीक है। कोई नया पार्टनर जो है वो ऑब्टेन कर सकता है इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस। अगर कोई नया पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहता है तो आपकी फर्म का इंफॉर्मेशन वो रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलवा सकता है। अगर आप रजिस्टर्ड हो तभी तो रजिस्ट्रार के पास जाओगे, अदरवाइज आपके फर्म का कुछ एग्जिस्टेंस का पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें थी ये आपके एडवांटेजेस हैं रजिस्ट्रेशन के। तो ये रजिस्ट्रेशन के क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या कंसिक्वेंसेस झेलना पड़ सकता है फॉर्म को इफ इट इज नॉट रजिस्टर्ड, और कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये तीनों टॉपिक क्लियर है सबको? तीनों टॉपिक क्लियर है? तो यार टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की हम बात करें, पार्टनर्स की नहीं, पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। कितने टाइप के पार्टनरशिप होते हैं? तो इसमें लिखे दिया 3 टाइप ऑफ पार्टनरशिप, 3 तरीके के पार्टनरशिप है। एंड आई गेस कि आपकी बुक में भी वैसे दिए होंगे, 2-3 टाइप के दिए हैं। एक तो हाँ, कौन कौन से टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है लिखिए। सबसे पहला जनरल पार्टनरशिप, फिर सेकेंड लिखिए लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, limited partnership, and the next one is limited liability partnership, limited liability partnership। इसका नेक्स्ट लिखिए partnership at will, partnership at will, 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 partnership at will, limited liability partnership, लिमिटेड पार्टनरशिप, एंड द नेक्स्ट वन इज जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। सो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप आपकी नॉर्मल पार्टनरशिप होता है जो, और इंडिया में सबसे ज्यादा यही जनरल पार्टनरशिप है। यहाँ पर सेम सिचुएशन होगा, आपके पार्टनर्स बनेंगे अलग अलग, जो भी आपके पार्टनर्स है वो रहेंगे, ठीक है। उनकी अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी, मिलकर कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनरशिप डेट बनाएंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे, एवरीथिंग विल बी लाइक द नॉर्मल थिंग। जो भी हमने भी पार्टनरशिप में पढ़ा लगभग वही सारी चीजें होंगी जनरल पार्टनरशिप में। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल में थोड़ा बहुत चेंजेस है नॉर्मल पार्टनरशिप से। वो क्या क्या चीजें, चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल पार्टनरशिप को समझना, ठीक है। सो आपके जो जनरल पार्टनरशिप जो होंगे उसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे। इसके फीचर्स लिखिए। जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, उसके फीचर्स लिखते जाइएगा। मैं बोल रही हूँ, आप सुनते जाइए, अगर आप लिख पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगले क्लास में उसको लिखवाने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो जनरल पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें होंगी? जनरल पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे ओनर, बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है। इसमें जो हर पार्टनर होगा, एवरी पार्टनर हैव इक्वल राइट, सब पार्टनर के पास इक्वल राइट होगा, ठीक है। सारे जो पार्टनर्स होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे, इसको लिखते जाइए। अ जनरल पार्टनरशिप कॉम्प्रोमाइजेस 2 or more owners to run a business. A general partnership compromises 2 or more owners to run a business, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा जो पार्टनरशिप में होते हैं वही वैसे सेम होंगे इसमें भी आपके पार्टनरशिप में, ठीक है। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन आपका होगा कि 2 या 2 से ज्यादा ओनर्स होंगे। सेकेंड पॉइंट लिखिए, each partner represent the firm with equal right, each partner represent the firm with equal right। हर एक पार्टनर का फर्म पे इक्वल राइट होगा, याद रखिएगा। जनरल पार्टनरशिप में द राइट ऑफ ईच पार्टनर विल बी इक्वल, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा लोग। नेक्स्ट लिखिए पॉइंट, all partners can participate in the management activities, लिखिए all partners can participate in the management activities, ठीक है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज, आगे कॉमा दीजिए, फिर लिखिए डिसीजन मेकिंग, कॉमा डिसीजन मेकिंग, ठीक है। and have the right to control the business, and have the right to control the business, and have the right to control the business, have the right to control the business।
यानी जितने पार्टनर्स होंगे वो मैनेजमेंट में प्रॉपरली पार्टिसिपेट करेंगे, उनका पूरा कंट्रोल होगा बिजनेस पे, डिसीजन मेकिंग पे, मैनेजमेंट करने के लिए पूरा उनका राइट होगा। जनरल पार्टनरशिप में मैं बता रही हूँ, ठीक है। और सेम टू सेम यहाँ पर और कुछ चीजें हैं, उसका ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट्स जो है कभी भी आ सकता है जनरल पार्टनरशिप क्या है, तो इसमें एक और कुछ पॉइंट्स और भी हैं कि वैसे ही इनका जो प्रॉफिट होगा, इनका जो डेप्ट होगा वो और लाइबिलिटी होगी, सारा का सारा इक्वली शेयर्ड होगा, यानी द रेशियो विल बी इक्वल। यानी अगर 4 पार्टनर है तो 1/4 का रेशियो सबका होगा। यानी कि प्रॉफिट, आगे लिखिए, प्रॉफिट, डेब्ट्स and liability, profit, debts and liabilities are equally shared and divided, ठीक है। यानी कि आपका प्रॉफिट होगा, डेप्ट होगी, आपकी लाइबिलिटी होगी, वो इक्वली शेयर होगा, ठीक है। यानी इक्वली शेयर होगा किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। यस ऋतिक, मैम अगर पार्टनरशिप का मतलब क्या है कि अब पार्टनरशिप में क्या आता है कि व्हाटएवर यू विल डिसाइडेड विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, यू हैव टू राइट दैट शेयर ऑन द पार्टनरशिप डीड। बट यहाँ पर जो शेयर प्रॉफिट होगा वो सब इक्वल होगा, सारे लोग एक्टिव पार्टनर्स होंगे, सब लोग मैनेजमेंट में ध्यान देंगे, सारे पार्टनर्स का सारे ओनर्स होंगे, सारे डिसीजन मेकिंग में इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये होता है आपका जनरल पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो आपकी रेशियो प्रॉफिट होगा ना, सबके बीच में इक्वल होगा। जनरल पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड डेब्ट्स एंड लायबिलिटी विल बी इक्वली शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बता रही हूँ, तो उसका एक टाइप है, ठीक है। यस, चलिए तो अब पॉइंट्स जो बताना चाह रही हूँ जो हम लोगों ने आज किए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स किए हैं शॉर्ट में बताती हूँ। सबसे पहली बात कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया पार्टनरशिप फर्म की रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पार्टनरशिप डेट के इंपॉर्टेंस क्या है, एंड देन आफ्टर व्हाट वी स्टार्टेड डिस्कसिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ कंसीक्वेंसेस दैट अनरजिस्टर्ड फर्म हैव टू फेस। तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है कि जो आपका आप किसी थर्ड पार्टी पे कोई केस नहीं कर सकते, आप किसी पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकते, आप कोई राइट को इन्फोर्स नहीं कर सकते अपने फर्म में। अगर 100 रुपीज से एक्सीड कर जाएगा आपका क्लेम, तो आप क्लेम नहीं कर सकते किसी थर्ड पार्टी पे, ठीक है। तो ये सारी कंसिक्वेंसेस थी। और क्या क्या ऐसी चीजें जिसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहला कि ऑब्वियसली जो थर्ड पार्टी आउटसाइडर है वो आप पे केस कर सकता है, आपके पार्टनर्स पे केस कर सकता है। अगर आपका बिजनेस जो है वो इंडिया में सिचुएटेड नहीं है, इंडिया से बाहर है, और अगर वो चाहे, मतलब पार्टनर्स या फिर अनरजिस्टर्ड फर्म चाहे, तो वो केस इंडिया में कर सकता है इजीली, लेकिन उसकी बिजनेस यहाँ नहीं होनी चाहिए इंडिया में, ठीक है। अनरजिस्टर्ड फर्म है फिर भी वो कर सकता है। अगर आपका क्लेम 100 रुपए से कम है तो भी आप बेसिकली देख सकते हो क्लेम को, मतलब आराम से आप 100 रुपीज से कम वाले क्लेम को आप फाइल कर सकते हो केस उसके लिए। और अगर डिसोल्यूशन होता है, यानी कि अगर आपकी कंपनी डिसॉल्व होती है, तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आपका फर्म रजिस्टर्ड हो या फर्म आपका रजिस्टर्ड ना हो। यानी कि द फर्म इज नॉट गोइंग टू अफेक्टेड दैट इट इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन। एक ऑफिशियल असाइनी आपको मिलेगा जैसे रजिस्टर्ड फर्म को मिलता है। आपके पार्टनर्स, इंसॉल्वेंट पार्टनर्स जो भी हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी, बिलोंगिंग्स, अगर वो लिमिटेड नहीं है तो, अब वो भी मुझे जब मैं टाइप्स बताऊंगी तो समझ में आएगा। तो आपके सारे एसेट्स वगैरह को वो क्या करेगा, रिलीज करेगा और पैसे को निकलवाएगा। सो डिसोल्यूशन के केस में रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये आपके थे कॉन्सिक्वेंसेस और नॉन कॉन्सिक्वेंसेस। अब नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में। तो हमने टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में यहाँ 4 लिखा था। खैर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और लायबिलिटी पार्टनरशिप में ज्यादा फर्क नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या था, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फिर आपकी लिमिटेड पार्टनरशिप, एंड द लास्ट वन इज पार्टनरशिप एट विल। तो ये कौन कौन टाइप के हैं इसको हम करेंगे। अभी हमने जनरल पार्टनरशिप किया। जनरल पार्टनरशिप में वही 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे, सारे पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स होंगे, सबका इक्वल राइट होगा, सारे पार्टनर्स डिसीजन मेकिंग कंट्रोल करेंगे बिजनेस को। एंड जो लास्ट है वो ये है कि यहाँ पर शेयर, प्रॉफिट, आपका लायबिलिटी, जो भी चीजें होंगी वो इक्वली डिवाइडेड होंगी। अब समझ में आया सबको पॉइंट जो भी मैंने बताया, जितने पॉइंट्स भी बताया मैंने, क्लियर हो गया, ठीक है। Yes, ma'am. तो ओके, सो हम लोग नेक्स्ट